Hello and welcome back to Engraving Mind. So this one is our second video in the series of number system. Till now we have already discussed about the number system, how many types of number systems are over there, like natural number, whole number, integers, rational number as well as irrational number. So in our last video we were talking about how will you actually decide that the given number is a kind of terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. So we were talking about that if a number is given like a rational number in the form of a by b, so first of all you have to take the LCM of your denominator, and if the LCM will comes out in the form of 2 की power m upon 4, that rational number will be the kind of your terminating decimal expansion form. एंड इन द सेम सीरीज मैंने आपको फर्दर ये बताया था कि अगर 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 भी आ सकता है, इसका मतलब कि एक पावर 0 हो सकती है, दूसरी पावर कोई होल नंबर हो सकती है. अगेन इट विल बी अ काइंड ऑफ योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो अब इस ओवरऑल मेथड को हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन में, और हम देखेंगे कि गिवन लाइक 1258 by 625 is a kind of your terminating kind of your rational number or non-terminating kind of your rational number. So the question is our 1258 upon 625. So the question is 1258 divided by 625. So we have to decide that the given number is a kind of your terminating rational number or non-terminating rational number. So we have to take the LCM of 625. So it will comes out to be 125, then 25, then 5, and then 1. So we can say this rational number can be written in the form of 1258 whole divided by 625 means 5 की power 4 multiplied by 2 की power 0. 5 की power n multiplied by 2 की power m, where m belongs to your whole number. So we can say this rational number is a kind of terminating kind of rational number. Means you can terminate it, you will get the remainder as 0. Another example, if I will pick up 77 upon 210. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 77 upon 210 का. 77 upon 210. So first of all we will check that we have to bring it in the more shortest form. तो यहाँ पे देख सकते हो कि 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो सकता है. 7 1 7, 7 1 7. So it will comes out to be 11 upon 30. Again we have to divide the 30 from 11 after point decimal. It will comes out to be 3 3s are 9, 90, 4s are 102. 3 से जाएगा. So it will comes out to be 90. Again decimal, now 6 times 180, 20. Now again 6 times, again 180, 20, 0. So the expanded form will be comes out in the form of 0.3666 up to infinite. Now I'm going to check it with the help of our method, and our method was 2 की power m multiplied by 5 की power n. तो क्या करते हो, 30 के LCM बनाओ. 30 के LCM किया, it will comes out to be 15, then 3, then 5. So here we can say it will be in the form of 11 upon 2 की power 1, 3 की power 1, 5 की power 1. यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर क्या आ चुका है, 3. It means it is a kind of non-terminating form. ये कौन सा फॉर्म हो गया है तुम्हारा? It is a kind of your non-terminating form of rational number. ये तुम्हारा non-terminating kind of rational number हो चुका है. Long story short, whenever you have to check that the given rational number is a kind of terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion, only you have to take the LCM of your denominator. If it is coming in the form of 2 की power m multiplied by 5 की power n, where m and n both belong to your whole number, so it will be the find of your terminating decimal expansion form. And if another form, another number is coming along with 2 की power m multiplied by 5 की power n, then it will be not your terminating decimal expansion form, or you can say this one is your non-terminating form of rational number. So our next slide will be, suppose if form is given in the form of 0.6 bar, and the question is saying, asking you to write the given expression in the form of p by q. So here you can say we can write 0.6 bar at 0.6666 up to infinite time. So you have to convert this form in the form of p by q, where p and q both are rational. Means p by q form means you have to write it in the form of rational number. And in this method, first of all you have to see that कि point के बाद बार कितने डिजिट पर लगा है, यानी कि आफ्टर योर डेसिमल पॉइंट
बार एक नंबर पे लगा है, 2 पे लगा है या 3 पे लगा है, तो जितने नंबर पे तुम्हारा बार अप्लाई होगा तुमको आफ्टर 1 उतने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सपोज द क्वेश्चन इज सेइंग 0.6 बार, इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, so the number will be converted 6.6666 up to infinite. If the question is saying 0.66 bar, so you have to multiply it by 100, so the whole bar will becomes in the form of 66.666 bar. If the question is saying 0.623 bar, so again for removing this bar you have to multiply it by 1000, so the number will become 623.232323 up to infinite time. Long story short, whenever in the question bar is given, you have to apply the method that first of all you have to remove the bar. For removing the bar, you have to multiply it by the 10, 100 or 1000, so that your bar will be removed from that portion, and then this one will become your expression number second. Then you have to subtract expression number second to the expression number first, then your number will be converted into the form of your rational number. So let us assume that the question is given as 0.6666. So first of all we will assume that as x is equal to 0.6 बार। हमने assume कर लिया कि जो x है वो 0.6 बार के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाइड बाय बोथ हैंड साइड बाय 10। अब मैं 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट है जिसके ऊपर एक बार गिवन है। अगर 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ होता देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 डिजिट के ऊपर लगा होता देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो व्हेनेवर वी विल मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ हैंड साइड, सो इट विल बिकम 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, क्योंकि ये 0.6 का मतलब क्या है, 66666 अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे ये नंबर किस पे कन्वर्ट हो गया, 6.66666 अप टू infinite. This one will become your expression number first and this one will become your expression number second. Now what we have to do, we have to subtract expression number 2 from expression number 1. तुमको expression number 2 को expression number 1 से subtract कर देना है. So the expression will become 10x minus x is equal to 6.6666 up to infinite minus 0.66666 up to infinite. तुमको इसको माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद में 6 इनफाइनाइट पॉइंट तक इस वाले टर्म में भी आ रहे हैं और डेसिमल के बाद 6 इस वाले नंबर पे भी आ रहे हैं. Whenever you will subtract this expression, 10x minus x will become your 9x and 6.66 minus 0.66 will become your 6 only. ये बात क्लियर है तुमको? Now we can say 9x या x is equal to 6 by 9 or x is equal to 2 by 3. So here you can say that easily we had converted the 0.6 form in the form of p by q, where p and q both are a kind of prime factor. Yani they have only one factor, one only. That is why x is equal to 2 by 3. With the same way, if I am going to take another example, अगर मैं एक दूसरा example लूँ, suppose the question is again saying convert 1.27 in the form of p by q. Again, we already know that 1.27 is a kind of your rational number because it is a kind of non-terminating periodic rational number. 1.27 कौन सा नंबर है? It is your non-terminating periodic function. It is a kind of your non-terminating periodic function, or you can say periodic rational number. It is a kind of your periodic rational number which is a kind of your non-terminating. So again what you have to do, you have to assume that, let us assume x is equal to 1.27 बार. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि 1.27272727 up to infinite time. Then अब यहाँ पे फिर से तुमको चेक लगाना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल प्लेस जो बार लगा है ये 2 डिजिट तक लगा है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100. तुमको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो द एक्सप्रेशन विल बिकम 100x इज इक्वल टू 127.272727 up to infinite. So this one I can assume that this one is your expression number first. ये expression number first है और ये expression number second है. Then again you have what you have to do, you have to subtract expression number second from expression number first. So the expression will become 100x minus x is equal to 127.272727 up to infinite minus 1.272727 up to infinite. So 100x minus x, we already know it will become your 99x, and 127 minus 1, it will become 126.000000 like that. So you can write x is equal to 127 divided by 99. इसको more shortest form पे लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 42 upon
33। अब इससे शॉर्टेस्ट फॉर्म पे तो पॉसिबल नहीं है, सो द आंसर विल बी x इज इक्वल टू 42/33 पॉसिबल है, 14/11। अब इससे इस स्मॉलेस्ट फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, सो द एक्सप्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1.27 बार कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 14/11। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको याद क्या रखना है, अभी तक हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर के दो फॉर्म होते हैं, एक वो जो टर्मिनेट हो जाते हैं, दूसरे जो कि टर्मिनेट नहीं होते। अगर कोई रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक टाइप का है तो उसको आप p/q के फॉर्म में कैसे लेके आओगे? तो उसका पहला मेथड ये है कि यू हैव टू ऑब्जर्व दैट आफ्टर डेसिमल प्लेसेस जो बार है वो कितने पॉइंट तक अप्लाई किया गया। अगर 2 पॉइंट तक अप्लाई किया गया देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 100, अप टू 3 डिजिट you have to multiply it by 1000, up to 4 digit you have to multiply it by 10,000, and the story will be goes on like that. After multiply it, this expression will become your expression number 2. Then you have to subtract expression number 2 to expression number first, so the expression will be become in the form of p/q, and after you have to solve it, the overall number will be converted into the form of p/q. तो यहाँ तक की स्टोरी के बाद the next number that we are going to touch is a kind of irrational number. जब हम लोग दूसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोगों का इरेशनल नंबर। डिफिनेशन में ऐसा लिखा होता है एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ हैव प्राइम फैक्टर एक्सेप्ट 1 इज अ कॉल्ड ऑफ इरेशनल नंबर। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिग डीपर ऑन द कॉन्सेप्ट और समझते हैं ऐसा होता क्यों। तो इरेशनल नंबर में सबसे पहली बात तो यही लिखी जाती है कि एनी नंबर दैट cannot be written in the form of p/q where q does not equal to 0 and p and q both have prime factor except 1। तो अब इस बात को समझते हैं। सपोज करो नाउ आई एम गोइंग टू से √2, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √2, so it will comes out to be 1.41421357 up to infinite, and this expression is not following any kind of your pattern, so we can say that this form is a kind of non terminating। ये कैसी फॉर्म है? ये है तुम्हारी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक का मतलब ये कोई पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता है, और ये एक तरह का नॉन पीरियोडिक है कि मतलब किसी पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता और टर्मिनेट भी नहीं होता। विद द सेम वे यू कैन ऑब्जर्व √3 इज इक्वल टू 1.732058 अप टू इनफाइनाइट। नंबर आते रहेंगे, ना तो उनका कोई पैटर्न होगा, ना तो तुम उनको टर्मिनेट करते जाओगे। विद द सेम वे √5, √7, √10 एंड इवन पाई, यू कैन ऑब्जर्व दैट यू कांट टर्मिनेट इट, दैट इज व्हाई इट इज अ फॉर्म ऑफ योर इर्रेशनल नंबर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एनी नंबर दैट यू कांट टर्मिनेट as well as that numbers does not follow any kind of you can say pattern is a kind of your irrational number. How you can not write it in the form of p/q? Suppose if I am going to say 1.41423 up to like that, if you will remove the decimal then you are going to increase the zero. How many number of zero you are going to increase? Actually infinite zero you are going to increase. With this concept you can say we can't write it in the form of p/q where we don't know how many zeros that can be contained by your denominator. That is why you can't write it in the form of p/q, and that is why it will become your kind of irrational number. तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर को तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले तुमको पाइथागोरियन ट्रिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और तुमको ये पता होना चाहिए कि इफ एनी नंबर रिटन इनसाइड द रूट देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विल सिंपली रिमूव द अंडर रूट प्रोसेस। मतलब क्या है इस बात का? तुमको दो कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। क्या है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट? ये है कि अगर कोई 90 डिग्री ट्राइएंगल है, 90 डिग्री ट्राइएंगल है, तो इसमें दिस वन विल बिकम योर हाइपोटेनस। कौन सी साइड? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली हाइपोटेनस होती है। बचे हुए किन्हीं भी दो को तुम बेस और परपेंडिकुलर बोल सकते हो। सो यू कैन राइट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरी कॉन्सेप्ट तुमको ये पता होनी चाहिए कि इफ आई एम गोइंग टू से √a का स्क्वायर, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई नंबर है जो रूट के अंदर लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर करने पर ये रूट सिंपली हट जाता है। इस चीज को तुम एक्सपोनेंट के थ्रू भी समझ सकते हो, बिकॉज √a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a की पावर 1/2 और उसकी सब पावर आ जाएगी 2। सो दिस पावर विल बी मल्टीप्लाई इट, मतलब
1/2 multiplied by 2, 2 will be cancel out और it will become a की पावर 1 is equal to a. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई भी नंबर जो रूट के अंदर लिखा होता है जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है। तुमको एक बात ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, तुमको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए जो कि तुम बचपन से ही अपने प्रीवियस क्लासेस 7, 8, 9 से पढ़ते चले आते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम देखते हैं कि हाउ यू कैन ड्रॉ द एन इर्रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो फॉर दिस कॉन्सेप्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। तुमको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। उन स्टेप के थ्रू तुम किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दोगे। तो सपोज करो दिस वन इज योर नंबर लाइन, ये हमारी कोई नंबर लाइन है और इसमें हमारा मिड पॉइंट है, दिस वन इज योर 0, दिस वन इज योर पॉइंट 1 एंड दिस वन इज योर पॉइंट -1। अब पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1, 1 की डिस्टेंस, 0 से 1 की डिस्टेंस कितनी हो सकती है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन टेक एनी डिस्टेंस बट इट शुड बी 1 यूनिट। कितनी होनी चाहिए? ये 1 यूनिट होनी चाहिए। सर 1 यूनिट का मतलब वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर, तुम 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, लेकिन जब तुम इसको ड्रॉ करोगे ऑन योर पेपर सो इट विल बिकम वेरी स्मॉलर इनसाइड। सो इंस्टेड ऑफ 1 सेंटीमीटर बाई व्हाट आई विल प्रिस्क्राइब टू द स्टूडेंट, एटलीस्ट यू हैव टू टेक 1 इंच। तुमको 1 इंच लेनी है और यू कैन एज्यूम दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 इंच। तुम ये भी ले सकते हो। इंस्टेड ऑफ 1 सेंटीमीटर या तो तुम 1 इंच प्रीफर करो और सबसे बेस्ट रहेगा तुम 2 इंच प्रीफर करो। तो तुमको 0 से लेके 1 के बीच में 2 इंच की एक डिस्टेंस ड्रॉ कर देनी है और तुमको क्लियरली ये बात प्रिस्क्राइब कर देनी है, मेंशन कर देनी है अपने ग्राफ पेपर में कि तुम यहाँ पर 1 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम 2 इंच को 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है? 2 इंच है। ये बात क्लियर हो गई। दिस वन इज योर स्टेप नंबर फर्स्ट, ये होगा तुम्हारा स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड में तुमको क्या करना है? स्टेप नंबर सेकंड में तुमको ये करना है कि यू हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन दिस पॉइंट। इसको मैं ज्यूम कर देता हूँ। दिस वन इज योर पॉइंट ए, दिस वन इज योर पॉइंट बी। तो पॉइंट बी में तुमको 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब वो तो तुमको कंस्ट्रक्ट करना आता ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दैट, you have to make 2 arc and again you have to make 1 arc. So this angle will become the angle of your 90 डिग्री। ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस पॉइंट से। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा लाइक दैट। अप्रोक्सीमेटली इट इज अ काइंड ऑफ योर 90 डिग्री ट्राइंगल। ये तुम्हारा 90 डिग्री का ट्राइंगल बन चुका है। अब हमको क्या करना है? ए से बी की डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम करी थी? 1 यूनिट, 1 यूनिट एज्यूम करी थी। अगेन वी हैव टू मेक एन आर्क ऑफ 1 यूनिट। सेम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ए से बी की है उतना ही आर्क तुमको कहाँ लगाना पड़ेगा? अपने परपेंडिकुलर में लगाना पड़ेगा। सो अगेन वी हैव टू मेक अ मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड अगेन वी हैव टू मेक एन आर्क। फिर से हमको एक आर्क इस तरह से मेजर कर देना है। इतनी बात समझ में आ रही है? इस आर्क को मेजर करने के बाद यू हैव टू जॉइन दिस पॉइंट ए टू पॉइंट ओ। तुमको पॉइंट, सपोज करो दिस वन इज योर पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, तुमको सी को ए से मिला देना। यू हैव टू मैच दैट पॉइंट बिकॉज दिस वन इज योर 1 यूनिट एंड दिस वन इज योर ऑल्सो 1 यूनिट। ये दोनों तुम्हारे 1 यूनिट है। तो अल्टीमेटली योर हाइपोटेनस विल बिकम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम और यू कैन सिंपली राइट इट अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हमको एक ऐसा 90 डिग्री का ट्राइंगल मिल चुका है जिसकी हाइपोटेनस की साइड क्या है? रूट 2। देन अगेन व्हाट यू हैव टू डू, फिर से तुमको क्या करना है? क्योंकि मुझको इस स्पेस की जरूरत है सो आई विल रिमूव इट। इसको हटा दूंगा फिलहाल के लिए। फिर तुमको क्या करना है? यू हैव टू मेजर दिस हाइपोटेनस। तुमको इस हाइपोटेनस का मेजरमेंट लेना है। वॉट एवर द मेजरमेंट विल कम, उस मेजरमेंट का तुमको आर्क लगाना है। उस मेजरमेंट का तुमको आर्क लगाना है। किस पे लगाना है? एक्स एक्सिस के एक्सटेंडेड पार्ट में। तो आर्क विल बी गोज लाइक दैट और तुमको अपने बेस को फर्दर आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। अगर एक्सटेंड नहीं है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सटेंड इट। अब तुम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि तुम्हारे आर्क ने तुम्हारे एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट किया है। जिस भी पॉइंट पे कट किया होगा वही पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 2 या 1.414 लाइक दैट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, whenever you want to construct or you want to represent any irrational number on number line, you have to remember 2 things। तुमको 2 चीजें याद रखनी है। क्या है वो 2 चीजें? पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि परपेंडिकुलर को भी हमने 1 यूनिट ले लिया और बेस को भी हमने 1 यूनिट ले लिया। दोनों का स्क्वायर किया सो इट विल बिकम 1। इधर स्क्वायर साइड था 1 + 1, 1 + 1 विल बिकम 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और इट विल कम्स आउट टू बी। जब हाइपोटेनस की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगी अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? हाइपोटेनस के फॉर्म में। फिर हमने हाइपोटेनस का मेजरमेंट लिया, जो भी मेजरमेंट आया उसका एक आर्क मारा। इस आर्क ने तुम्हारे एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट किया। दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग योर इरेशनल नंबर एज अंडर रूट 2।
With the same way, you can represent under root 3, under root 5, under root 7, under root 10 or under root 13 with the same method. So this one is your homework part. You have to draw it and you have to represent it.